Thank you, friends, for joining us for this important press meet. It is important for two reasons. We'll be addressing two issues. The first issue is, of course, the ongoing Hathras tragedy. And the second issue is the raid by CBI on Karnataka PCC President and former Minister Shri D.K. Shiv Kumar. First, I'll address the media on the Hathras case. We have seen that yesterday, General Secretary in charge of Uttar Pradesh, Priyanka Gandhi ji, has highlighted something extremely significant. And I say it's significant because these demands come from the family of the Hathras rape victim. First of all, Yogi Adityanath ji's government must immediately suspend or dismiss the DM who is on record on a video threatening the family, and he should not be given any other position till it is thoroughly investigated at whose instruction and whose behest did the DM go to the victim of the family and threaten them in the manner that they did. Secondly, the family of the victim is demanding a judicial inquiry by a sitting judge of the Supreme Court. What is the reason for it? It is crystal clear that from the date the young helpless girl was raped, that all institutions within the state of Uttar Pradesh, whether it is the SIT with senior officers, are in cahoots to hush up this matter. It is shocking that an SIT was set up after 14 days, and after the media and the opposition leaders, specifically Priyanka Gandhi ji and Rahul Gandhi ji, met the victim's family in Hathras, as damage control, they ordered a CBI inquiry. Now the question is, an important question is, CBI inquiry has been set up, but CBI, as of today, the information I have, they have not gone on the ground. SIT inquiry is still continuing on the ground. More importantly, it is heartbreaking when the family of the victim is asking that after the tragic and ruthless incident of not allowing the family members to go through the proper rituals at the cremation service, they are asking that please prove to us that the body that was hurriedly bought and burnt with fuel, whether it's kerosene or diesel or petrol or whatever, was that body actually of their daughter? Is there any way to determine this? The family is asking. Secondly, that in the name of humanity, the family has demanded that if the body was their daughter's, then they should be allowed to take the ashes for a dignified ritual which is part of their custom and their culture. Now we want to ask the Adityanath government that which of these demands are unjustified by the family? Should the DM not be dismissed and investigated? Should there not be a judicial inquiry? Why is the CIT still on the ground when you have yourself demanded, yourself ordered a CBI inquiry? What is it that the Adityanath government is hiding? Why shouldn't a judicial inquiry happen in this? And if CM Uttar Pradesh has any shame or any conscience, he should tell the country and the victim's family that what evidence does it have to prove that the body that was cremated hurriedly 2:30 a.m. in the morning is the girl's body, and it is the family. It is the family of the victim that is asking those questions. These questions remain unanswered till now.
I would like to now move to an important, equally important issue that has unfolded in Karnataka today. We have seen that there is a raid going on in PCC President's residence and other addresses associated to his family. It is shocking how the Bharatiya Janata Party repeatedly uses these agencies to target opposition leaders. I want to ask one question to the Bharatiya Janata Party. Why is it that before every election, the moment an election or a by-election is ordered, the CBI suddenly wakes up and starts these raids? We want to ask the Central Bureau of Investigation that why is it that you always wake up before an election? Are you not acting like the stooge of this government? We would like to ask the Bharatiya Janata Party and the Prime Minister of India कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, that was your slogan. What justification can you give to the nation about not investigating Yeddurappaji's family, his son-in-law, whose grandson? There is ample prima facie evidence to say that they are dripping in corruption. Recently, Mr. Surjewala was in Karnataka and he did a detailed press meet. Can the BJP answer that are there not WhatsApp messages referring to family members of Yeddurappaji? Are there not enough prima facie evidence to show that son and grandson, their addresses were shared in the WhatsApp group for delivery of corruption money? Is the grandson not on record to say that the BDM commissioner should be transferred? Why should he have be transferred? Is it not a fact that he is dripping in corruption in this apartments case? Today, Bharatiya Janata Party is repeatedly using agencies because they know that is the only way they can divert the attention of the nation. We condemn this witch hunt. We condemn this witch hunt, and the Congress party stands by Shri D.K. Shiv Kumar, who is nothing but a victim of an election that is due to happen in Karnataka. And it is a shame on the Prime Minister of India. It is a shame on the Home Minister of India. It is a shame on the Bharatiya Janata Party that today you continue to shield your corrupt Chief Minister and his son-in-law and grandson in the 662 crore scam which you deliberately do not want to investigate. We demand an inquiry. We demand an inquiry into Yeddurappaji's family's corruption and explain to the nation that why is Yeddurappa's family getting a different treatment from what Mr. D.K. Shiv Kumar is getting. If there is sufficient evidence, the CBI feels there is, if the government feels that there is sufficient information or prima facie evidence in D.K. Shiv Kumar case, then I will say there is overwhelming evidence against Yeddurappaji, his son-in-law and grandson. I'll briefly speak in Hindi. पहला मुद्दा है हाथरस का केस. प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के हर नेता ने देश को यह आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे पर हम पीछे नहीं हटेंगे. कल प्रियंका गांधी जी के ट्विटर हैंडल से कुछ अहम सवालों को उठाया गया, उसको मैं दोहराना चाहूंगी. और ये अहम और महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो मांग सिर्फ महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी की मांगे नहीं है. ये मांगे हाथरस के बेटी के परिवार के सदस्यों की तरफ से आया है. पहली मांग ये है कि जिस डीएम ने बेरहमी से हाथरस के विक्टिम के परिवार के सदस्यों को धमकाया, वह डीएम आज तक अपनी कुर्सी पर क्यों बैठा है? अजय बिष्ट जी से मैं पूछना चाहती हूं कि जो हाथरस की
बेटी के परिवार के सदस्य बोल रहे हैं वो आपको तुरंत करना चाहिए, उस डीएम को तुरंत हटाना चाहिए, उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन उनको किसी और कुर्सी पे बैठने का हक नहीं मिलना चाहिए। हमारी दूसरी मांग है जुडिशियल इंक्वायरी, जिसमें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को मॉनिटर करना चाहिए। इसका कारण क्या है? 14 सितंबर से लेकर आज तक ये पूरी तरह से साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश का हर प्रशासन, हर पुलिस, हर अफसर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कल भी देखा कि न्यूज चैनल्स में ये खबर आ रही है कि एक श्रेणी के लोग आज हाथरस में पीड़िता के परिवार के सदस्यों को धमका रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ देख रही है। आपने तब सीबीआई इंक्वायरी की ऑर्डर जारी तब की जब प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी हाथरस पहुंचने वाले थे या पहुंच गए थे या पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आपने सीबीआई इंक्वायरी की ऑर्डर तो कर दी, पर सच्चाई यही है कि एसआईटी आज तक जमीन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या जवाब है? इसकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी के माध्यम से हो सकती है और इसका सिर्फ एक कारण मैं आपको दे रही हूं। अगर एक बच्ची खेत में मिले जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी और जबान कट गया हो और वो बेहोश हो, आप उसका फोरेंसिक एविडेंस रेप के लिए तब तक नहीं कराते जब तक वो होश में नहीं आती। 22 सितंबर जब आपने उसको उठाकर अस्पताल में डाला था, जब वो बोल नहीं पा रही थी, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तब उस बेहोश जख्मी लड़की का फोरेंसिक एविडेंस नहीं कराया? जरा सोचिए, इज इट नॉट द नेचुरल थिंग टू डू? क्या वो स्वाभाविक नहीं है कि एक लड़की जो इतनी बुरी तरह इंजर्ड है, जो बोल नहीं पा रही है क्योंकि उसके मुंह में जबान को काट दिया गया है, आप उसका फोरेंसिक एविडेंस तब तक नहीं कराते जब तक वो होश में आती है? आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है 11 दिन आप रुके रहे कि वो बेचारी पीड़िता होश में आएगी और अपने बलात्कार के बारे में कहेगी। ये कैसा सरकार है? ये कैसी पुलिस है? एसआईटी अब क्या करेगी जब उसकी चिता जल चुकी है? सीबीआई अब क्या करेगी कि जिस बॉडी में, जिस शरीर में एविडेंस था उसको आपने जला दिया है? इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत इसलिए है, हर उस अफसर को उसके गिरेबान से खींचकर जेल में डालने की जरूरत है। मुख्यमंत्री को इस इंक्वायरी में खींचने की जरूरत है, इसमें बुलाने की जरूरत है, उनसे प्रश्न करने की जरूरत है कि आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे, आपने कैसे एक बच्ची को, बेहोश बच्ची को बिना किसी फोरेंसिक टेस्ट के पड़े रहने दिया 11 दिन 22 सितंबर तक? यह आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ। अब मैं एक और अहम मुद्दे पे बोलना चाहती हूं। आज सुबह हम सब ने देखा है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान डीके शिव कुमार के घर में सीबीआई का रेड हुआ। ये सीबीआई कठपुतली है, हम पहली बार नहीं कह रहे, हम शुरू से कह रहे और सीबीआई ऑफिस का घेराव भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम पहले कर चुके हैं। मैं देश से कहना चाहती हूं कि ये क्या कारण है कि जब भी चुनाव या उपचुनाव की घोषणा होती है तभी सीबीआई अपने नींद से जाग जाती है। कर्नाटका में अलग अलग दूसरे प्रदेशों के साथ उपचुनाव है, हम सब जानते हैं। अब सीबीआई अपने काम पे लग गई है, कि पूरे देश के चुनाव के मुद्दे से डिस्ट्रैक्शन के लिए आज वो डीके शिव कुमार के घर पहुंचे हैं। सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा था ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, पर येड्डुरप्पा जी के बेटे, दामाद और पोते ने
कितना पैसा खाया है, ये सुरजेवाला जी ने कुछ दिन पहले कर्नाटक में प्रेस मीट के माध्यम से कहा था। 622 करोड़ का ये स्कैम है और इतना एविडेंस है इस केस में कि अगर इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो येड्डूरप्पा के बेटे, दामाद और पोते को कई दिन जेल में, कई साल जेल में काटना पड़ेगा। आज व्हाट्सएप मैसेजेस में उनके नाम हैं, उनके घर के एड्रेसेस हैं कि कहां पैसा पहुंचाना है, और खुद उनके पोते और दामाद ने कहा था कि विजेंद्र जी जो है कि कॉन्ट्रैक्टर रिकवर द मनी बैक फ्रॉम द बीडीए ऑफ कमिश्नर। सीएम के बेटे विजेंद्र जी खुद कॉन्ट्रैक्टर को कह रहा है कि पैसे वसूल करिए बीडीए कमिश्नर से। इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए क्या सीबीआई इंक्वायरी के लिए? आप लोगों ने तो इन एजेंसीज के माध्यम से जो विच हंटिंग शुरू की है उसको हम कंडेम करते हैं। और खुले शब्दों में मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का हर नेता डीके शिव कुमार के साथ खड़ा है और येड्डूरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों को जब तक उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, सिर्फ कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस नहीं, एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता इसको लेकर आंदोलन करेगी। हमारी मांग है कि येड्डूरप्पा जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए और येड्डूरप्पा जी के बेटे, पोते और दामाद को गिरेबान से खींच के उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वरना देश के लोगों के सामने यह साबित हो जाएगा दैट दिस इज नथिंग बट अ विच हंट। अगर आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, आई कैन एड्रेस। आई थिंक द अमाउंट इज 666 करोड़, नॉट 22। पहला सवाल, आदित्यनाथ जी ने एसआईटी अपने बचाव के लिए बनाया है या पीड़िता के साथ क्या हुआ उसकी जांच करने के लिए बचाया है? एसआईटी का एजेंडा क्या है कि जिस लड़की को बेरहमी से बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया गया, उस पर एसआईटी कुछ नहीं बोल रही है। सरकार को बदनाम करने के लिए कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है, एसआईटी क्या इसके लिए हमने बिठाया है? अजय बिष्ट के जो टट्टू बैठे हैं एसआईटी में, उनको शर्म नहीं आती? अब तो एसआईटी एक्सपोज हो गई है। एसआईटी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है और इस सवाल के लिए धन्यवाद कि एसआईटी किसके तलवे चाट रही है? चीफ मिनिस्टर के तलवे चाटने के लिए एसआईटी बिठाई है या उस पीड़िता के साथ जो बेरहमी से बलात्कार और उसका कत्ल हुआ उसके लिए बैठी है? एसआईटी तो टट्टू है जिस तरह से सीबीआई है। एसआईटी का अगर कोई सदस्य भगवान स्वरूप या कौन है, उस यमराज से पूछिए कि आपको हथरस की बेटी नहीं दिख रही, आपको आदित्यनाथ की सरकार की बचाव की पड़ी है, इस बेटी के इंसाफ की नहीं पड़ी है। ऐसे एसआईटी पर भी एक एसआईटी बिठाने की जरूरत है और यही कारण है कि प्रियंका गांधी जी और हाथरस की विक्टिम्स के परिवार के सदस्य आज जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं। एसआईटी किस लिए बिठाई है? जवाब दे आदित्यनाथ जी। आदित्यनाथ को बचाने के लिए या हसरत की बेटी को न्याय दिलाने के लिए? दे स्टैंड एक्सपोज्ड, दीज पपेट्स who have been put in the SIT, वो puppets हैं and they are shameless to talk about what is harming Adityanath government and not what happened to the girl who's died and the entire nation is crying foul. ये SIT तो मजाक बन के रह गई है, मैं यही कहूंगी। और कोई सवाल? प्रणब,
I mean, I don't know what, I haven't seen what Adhir Ranjan ji's tweet says. It's his view on the basis of whatever the media has shown. And I think this investigation has been nicely politicized by the BJP. How much of justice will be done to Sushant or anybody else is a big question, and I think the nation understands that. All we want, that in a country where rule of law is everything, in a country that rule of law is everything, justice must be done, and must be done with complete transparency and absolutely no politicization, no election and no biases. That's all we want, and I hope it happens in this case, because after all, Sushant Singh Rajput's death did shake the nation. पहले बिहार के सवाल पे कहूंगी कि सवाल का जवाब सवाल से नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं ये कहती हूं कि चुनाव के पहले ही ये सब क्यों होता है, ये पहला सवाल है। अगर आरजेडी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, वो पहले क्यों नहीं हुआ? आई क्वेश्चन द टाइमिंग। मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूं, मैं कह नहीं सकती किसने क्या किया, किसका कत्ल हुआ कि नहीं, ये बोलना मेरा कर्तव्य, मेरे को शोभा नहीं देता। पर एक ही सवाल है, आई क्वेश्चन द टाइमिंग ऑफ इट, और आरजेडी के नेता सक्षम है, वो उसका जवाब जरूर बिहार के किसी मंच से या प्रेस मीट के माध्यम से देंगे, उसका इंतजार करें। देखिए, पॉलिटिकल किलिंग कहीं भी हो, चाहे केरल में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, त्रिपुरा में हो, कहीं भी हो, ये लोकतांत्रिक देश को शोभा नहीं देता। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का अगर कत्ल होता है, विच इज अ पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिकल असॉल्ट, हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि केरल में ये हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ है। सो वी डू नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस against a worker of any political party, and law must intervene and do justice, and law must also act in order to prevent these things. क्योंकि अगर political killings देश में बढ़ेंगे तो चुनाव के वक्त जनता पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो बाहर नहीं आते वोट डालने के लिए जब हिंसा फैलता है। So we condemn any sort of political killing, we do not support it. That's it. Thank you. Pranav, I think just circulate these demands, that's all. Just to be sure.